آج ویو 360 میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑوں میں اتحاد دہشت گردی کے خلاف کوششوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ پاکستان کی جیلوں میں کم سن قیدیوں کی مشکلات۔ جب میں نے اپنا چہرہ دیکھا نا، گنجا چہرہ، پہلی بار میں نے یوں کر کے غور سے دیکھا، پہلی بار مجھے لگا مجھے اپنا چہرہ نظر آیا اور میری ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو گئی، کیونکہ مجھے ایک بہت مضبوط عورت نظر آئی۔ اور اداکارہ نادیہ جمیل کی کینسر سے جنگ کی کہانی ان کی زبانی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ پاک افغان خطے میں امن کے لیے عالمی طاقتیں اس وقت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی منتظر ہیں، لیکن اس ہفتے پاکستان میں بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اس سے الگ ہو جانے والے دو دھڑے جماعت الاحرار اور حزب الاحرار پھر سے اس میں ضم ہو گئے ہیں۔ جماعت الاحرار 2014 میں ٹی ٹی پی سے الگ ہو کے ایک نئی تنظیم بنی تھی، اور پھر بعد میں اس کا بھی ایک اور نیا دھڑا سامنے آ گیا تھا۔ یہ دونوں دھڑے ہی پاکستان میں عام شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں، اور ان کے افغانستان میں بھی شدت پسندوں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان میں آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کے نتیجے میں ان تنظیموں کی قوت میں کمی تو آئی تھی، لیکن اب ان کے دوبارہ متحد ہونے سے ان کی صلاحیتوں کے بارے میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کی کوششیں اس پیش رفت سے کیسے متاثر ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں اسد اللہ خالد نے بات کی سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی سے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنظیمیں اپنی صلاحیتیں اور اپنی طاقتوں کا اظہار کرنے کے لیے حملے کر سکتی ہیں۔ یہ دونوں طالبان دھڑوں کا مل جانا آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں جو دہشت گردی کی کاروائیاں خاتمے کے لیے چل رہی تھیں ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو پاکستان کی فوجی کاروائیاں 2003-04 میں شروع ہو گئی تھی، اور 2014 میں جس طرح آپ نے کہا سب سے بڑی فوجی کاروائی ضرب العضب ہوئی تھی، اور ابھی آج کل یہ ضرب الفساد کے نام سے کاروائی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کاروائی کی وجہ سے جو ہمارا ملکن ڈویژن ہے سوات اور جو سابقہ قبائلی علاقہ ہے فاٹا، وہاں پہ کافی حد تک امن قائم ہو گیا ہے، اور یہ جو پاکستانی طالبان اور جو ان کے اتحادی تھے ان میں سے اکثریت افغانستان فرار ہو گئی تھی۔ اور اس طرح بھی ایک یو این کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ 6 سے لے کے 6,500 تک پاکستانی طالبان اور ان کے ساتھی وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہاں سے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو نئی خبر ہے کہ یہ دو جو ذرے تھے تحریک طالبان پاکستان کے، یہ جو قیادت کی وجہ سے، امارت کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے تھے، جب فضل اللہ کو امیر بنایا گیا تو اختلاف رائے پیدا ہوا تھا، تو یہ حزب الاحرار اور جماعت الاحرار یہ دو دھڑے اب پھر سے شامل ہو گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان میں۔ میرے خیال میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ان میں تفریق پیدا ہوئی، دھڑے بندی ہوئی، تو یہ کمزور ہو گئے تھے۔ جیسے بھی کافی لوگ ان کے مارے گئے، پکڑے گئے، تو ابھی ان کی مجبوری بھی تھی کہ یہ اکٹھے ہو جائے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کوشش کریں گے کہ اپنے حملوں میں تیزی لے کر آئیں تاکہ یہ دکھائیں کہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور کافی مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو یوسف صاحب، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں دھڑے طالبان کے جو اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں کوئی خدشہ ہے کہ پرتشدد کارروائیاں اس حوالے سے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ چونکہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ دکھانا چاہیں گے کہ ابھی یہ مل کر کارروائیاں کریں گے اور ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو کچھ شروع میں تو کارروائیاں ہوں گی۔ آج بھی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور میں حزب الاحرار کے ایک دہشت گرد کو پکڑا گیا ہے، اور یہ بھی اعلان ہوا ہے کراچی میں کچھ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگ بھجوا دیے ہیں، سہولت کار بھی ہیں، اور وہ نئے حملوں کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ ان کی مجموعی قوت کمزور ہو گئی ہے، اور جب سے ان میں اختلاف رائے پیدا ہوا، دھڑے بندی ہوئی، تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا
कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए, तो शायद शुरू में कुछ इजाफा हो, लेकिन मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। अमल जो अफगानिस्तान में है, इंट्रा अफगान डायलॉग जो है, वो कैसे स्टार्ट होगा? मुश्किलात तो काफ़ी हैं, यानी मुज़ाकरात शुरू करने में ही मुश्किलात है, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में कितनी मुश्किलात पेश आएंगी। आज अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो की तरफ से खबर भी आई है कि अफगान हुकूमत नहीं चाहती कि अमेरिकी इंतखाबात तक ये बातचीत शुरू हो या आगे बढ़े, क्योंकि उनका शायद ये ख्याल है कि अगर जो बाइडन मुंतखब हो गए तो उनकी अफगानिस्तान के हवाले से ट्रंप की पॉलिसी से मुख्तलिफ होगी और वो ट्रंप की पॉलिसी, तो ये इस तरह की बातें हो रही है। हालांकि अफगान हुकूमत ने इसकी तरदीद भी की है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत ने तालिबान के 5000 कैदियों में से आखिरी चंद सौ की रिहाई तब रोक दी जब ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने ऐसे अफराद की रिहाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो उनके शहरियों की हलाकत में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीन इस पूरी सूरत हाल को ही बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि अपने वतन में अमन के वो ख्वाह हैं ताकि वो वापस जा सकें। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बाज़ अफगान पनाह गुज़ीनों का कहना था कि उन्हें गनी हुकूमत से ज़्यादा तालिबान पर भरोसा है। अल्लाह करे बेहतर हो जाए, मुज़ाकरात जो है ये बहुत बेहतर हो जाए तो हम सब मुसलमान इस पे खुश हैं। सिर्फ हम अफ़गानी भाई नहीं, हालांकि जितने दुनिया में जितने मुसलमान लोग हैं सब खुश हो रहे हैं इस पे। तो रोज़ जो है ना 300-400 बंदे वहाँ पे मर जाते हैं। ये तो अच्छा है कि एक मुसलमान का जो है ज़िंदगी बच जाए, तो ये अमन हो जाए, बहुत अच्छा है। हमारे पैगाम है कि बस अल्लाह करे अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए, इस्लामी निज़ाम आ जाए, जो फैसले कुरान हदीस पे हो जाए। क्यों, हमारा दिन भी इस्लाम है, हमारा दिन ईमान सारा इंशाल्लाह कुरान हदीस पे है। ये जो लोग बोलते हैं बात गलत है कि तालिबान की हुकूमत आएगा उसमें अमन नहीं होगा। तालिबान कोई ऐसे लोग नहीं कि लोगों को जिंदा कार है या गैर कानूनी करता है। वो अमन पसंद लोग है, वो शरीयत की पाबंद लोग है, वो कुरान हदीस की पाबंद लोग है। कुरान हदीस में कभी भी बेअमनी होता है, कभी भी नहीं होता है। उन हुकूमत में भी इतना ख़राबी नहीं था, अमन का मसला था, तो सारा बात अमन का है। उनमें शमाली जो अभी मज़ार शरीफ में वहाँ पे लोगों के दोस्तों में लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहा था। जब तालिब को हुकूमत आएगा तो इंशाल्लाह सारा सूबों में अमन होएगा, एक हुकूमत होएगा, एक निज़ाम होगा, एक इस्लाम होएगा। अब एक जगह पे लड़ाई, एक जगह पे अमन, यही मसला है। यानी कर्ज़ हुकूमत भी सही था, अशरफ गनी को भी फ़िलहाल हुकूमत इतना बेकार नहीं है, सही जा रहे हालात मुल्क का, मगर अमन का मसला है। वाज़ेह बात, अमन का एक अमन नहीं है। पाक अफगान खत्ते की सूरत हाल समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प वीडियोस के लिए आप जब चाहें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुख कर सकते हैं। facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हर वक्त अपडेट किया जाता है। पाकिस्तान में जब बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है तो आम तौर पर तवज्जो उनके माशी या जिनसी इस्तेहसाल पर दी जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं, यानी किसी जुर्म के इल्ज़ाम में पकड़े जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मौजूद है, जिसका मकसद तो यही है कि उनकी सज़ा से ज़्यादा उनकी इस्लाह पर तवज्जो दी जाए। लेकिन एक साबिक कम उम्र कैदी का कहना है कि जेल में इस्लाह के मौक़े शायद ही किसी को मिलते हों। इस बारे में तफसीलात लेकर आई हैं लाहौर से समन खान। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शफीक की उम्र 17 साल थी जब ज्यादती के इल्जाम में से गिरफ्तार किया गया। जब मुझे इधर से ले आके मुझे माल्टा सीआईए में ले गए हैं, ठीक है। मुझे कहा तुम इतने पर्चे दे दोगे, इतने पर्चे दे देंगे, ठीक है। उन्होंने पर्चा दिया एक महीना मैंने उत्थे रखा सी थाने, बाद उन्होंने मेरा पर्चा दिता, बाद पर्चा दे के मैं जेल भेजता, मारिया कुटिया, ठीक है। मैंने पुछते रहे किया नहीं किया। जेल गया सना मैंने उन्होंने क्या झाड़ू मार, मैं नहीं मारना। उन्होंने मैंने मारिया कुटिया। कच्चा खाना होंदा सी, मुर्गी होंदी सी, 8 दिन बाद मुर्गी देंदे 4 बारी, ठीक है। दाल नाल सब्जियां देंदे ही, बस यह कुछ कच्चे। जुर्म साबित शफीक को 3.5 साल बाद 2019 में रिहाई तो मिल गई, लेकिन जेल में गुजरे वक्त ने इसे जिंदगी की तलखियों के अलावा कुछ ज्यादा नहीं सिखाया। शफीक के मुताबिक जेल में कंप्यूटर और किताबें तो थी, मगर शफकत और रहनुमाई नहीं थी।
तने मलादा कोई चक्कर नहीं, ठीक है, किताबा दे दो उन्होंने, जरा बाल पढ़िया लिखिया बच्चा है ना उन्होंने पढ़ाई जाएगा, सर सैर तो बह जाएंगे। नमाज सीखी है, 3 कलमे सीखे ने बस। मैं जिदा जब पुराना हो गया वहाँ उधर मैं क्लास में बहना चाहता है, तो अच्छी चीज़ कोई सीख ही नहीं सकता। अंचारे में पैसे ना होंगे बस, उन्हें चाहिए बस मेरे पैसे लग गए, ठीक है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम जेलों में इस वक्त तकरीबन 1225 कैदी बच्चे हैं या फिर जुर्म करते वक्त नाबालिग थे। 2014 से अब तक कम से कम 6 ऐसे अफराद को सजाए मौत भी दी जा चुकी है जो जुर्म करते वक्त बालिग नहीं थे। पाकिस्तान में 2018 में कम उम्र मुल्जिमान के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नाफिज हुआ। इसके तहत कम उम्री में किए गए जुर्म पर सजाए मौत नहीं दी जा सकती और इनके मुकदमात भी खसूसी तौर पर कायम की गई बच्चों की अदालतों में ही चलाए जा सकते हैं। लेकिन इंसानी हकूक के कारकुनों के मुताबिक मुल्क भर में बच्चों की अदालतें तश्कील नहीं दी जा सकी, जबकि मुल्जिम की उम्र का तयन करने के तरीके भी फरसूदा हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पुलिस अफसरान को उम्र की तशखीस की जिम्मेदारी से आगाही नहीं। यही वजह है कि बेशतर केसेस में महज कट काट की बुनियाद पर मुजरिम को बालिग समझते हुए केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है या फिर केस का फैसला होते होते वो 18 साल उम्र की हद पार कर लेता है और फिर उन्हें किसी भी बालिग मुजरिम की तरह सजा भुगतनी पड़ सकती है। शफीक का मुकदमा कैदियों की फलाह के लिए काम करने वाली तंजीम रिडेम्पशन ने लड़ा। तंजीम के मुताबिक बैनुल अक़वामी दबाव के बाइस पाकिस्तान ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो बना लिया, लेकिन इस पर अमल दरामद नजर नहीं आता। जो कैंप जेल है, इसमें अडल्ट भी होते हैं, सारे बड़े भी हैं, तो इसी के अंदर एक जुवेनाइल वार्ड इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है जी। तो उसके अंदर 15, 16, 20, 25, 30 कैदी जो बच्चे हैं जो आते हैं उनको रखते हैं ट्रायल के लिए। अगर तो सजा हो जाए जुवेनाइल जस्टिस के तहत ही तो फिर वो बॉस्टल इंस्टीट्यूट भेज देते हैं। अगर अब यहाँ पर ये भी होता है कि जी वो अपने ट्रायल के दौरान ही वो बच्चा अडल्ट हो जाता है तो वो फिर उसका केस अडल्ट में आ गया होता है, वो जुवेनाइल जस्टिस में रहता ही नहीं होता। बालिग और नाबालिग मुजरिमों को एक जगह रखने से कम उम्र कैदियों के इस्तेहसाल का इम्कान बढ़ जाता है। शफीक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब इसको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की गई तो इसने उसका रिएक्शन दिखाया और इसने लड़ाई की उस बंदे के साथ। लड़ाई की तो जेल सुपरिटेंडेंट ने इसको सॉलिटरी कन्फाइन कर दिया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 15-16 दिन, हद 20 दिन से ज्यादा सॉलिटरी नहीं रखते एक दफा में, लेकिन इसके केस में 3-3.5 महीने ये बेचारा अकेला रहा है, तो ना फैमिली को मिलने दिया है, ना बाहर से सप्लाईज जाने दी हैं। जेल में तो मुझे नहीं अंदाजा हो सका था, लेकिन जब बाहर आया तो मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि ये इसको वहां से नशे की आदत लग गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कानून पर अमल दरामद के हवाले से वजीर कानून पंजाब से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुस्बत जवाब नहीं मिला। शफीक अब अपना पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है, लेकिन चाह कर भी अपने माजी की नाइंसाफियां भुला नहीं पा रहा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। और अब बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ पे आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि पिछले 10 सालों के दौरान नौजवानों में जराइम की शरह में 70% तक कमी आई है। यहाँ पे भी ऐसे कम उम्र मुजरिमों के लिए इस्लाही मराकज़ मौजूद हैं। किस तरह काम करते हैं, इस बारे में चलते हैं एक ऐसे ही डिटेंशन सेंटर में सादिया ज़ेबरांझा के साथ। 90 की दहाई में अमेरिका में नौजवानों में मुतादिद जराइम की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची तो गैर मुनाफा बख्श तंजीमें, कानून साज और शहरी आगे आए और सजाओं में तब्दीली की कोशिशें की और बहाली नौ की सहूलतों में इजाफे पर जोर दिया। इसके नतीजे में नौजवानों में जराइम की सतह 70% कम हुई। सिस्टम ने ये जानने पर तवज्जो दी है कि कौन कौन से अमल जराइम के जुमरे में आते हैं और कौन कौन से जराइम नहीं कहलाए जा सकते। मसलन छोटी उम्र में सिगरेट और शराब खरीदना अब ये गैर कानूनी तो है, लेकिन ऐसा जुर्म भी नहीं कि बच्चे को जेल में डाल दिया जाए। जोनिथा मैकनियर नॉर्दर्न वर्जीनिया जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अपने मुकदमात के फैसले का इंतजार करने वाले या अदालतों से जुर्म साबित हो जाने वाले कम उम्र मुल्जिमान को यहाँ रखा जाता है, लेकिन सजा के तौर पर नहीं बल्कि बहाली के मकसद से। जोनिथा के मुताबिक ऐसे बच्चों को उनके माँ बाप के साथ घर में रहते हुए भी सुधारा जा सकता है और उन पर नजर रखी जा सकती है। और गुज़श्ता एक अशरे में ऐसी ही कोशिशों से हिरासती मराकज में नौजवानों की तादाद रिकॉर्ड हद तक कम हुई है। अगरचे ये मरकज काफी पुराना है, लेकिन यहाँ राइज तरीक़ाकार बिल्कुल नया है। यहाँ एक रोज के लिए आने वाले बच्चे की भी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत का मुकम्मल जायजा लिया जाता है ताकि इसके किसी भी अमल के पीछे छुपी वजह तक पहुँचा जा सके।
अगरचे कम उम्र मुलजमान की बहाली के हवाले से अमेरिका में बहुत पेशरफ्त हुई है, इसे अभी भी खामियों से पाक नहीं कहा जा सकता। रियासत वर्जीनिया में कुल 24 हिरासती मराकज हैं, जिनमें से महज 2 सेंटर्स ऐसे हैं जहां सजा के तौर पर बच्चों को उनके सेल्स में बंद नहीं किया जाता और न ही उन पर चीखा चिल्लाया जाता है, बल्कि उनके किसी भी नाकाबिले कबूल रवैये के पीछे छुपी वजह को जानकर थेरेपी या किसी भी मुनासिब इलाज से हल करने की कोशिश की जाती है, और हम इनमें से एक हैं। इस सेंटर को निजी सतह पर एक गवर्निंग बॉडी चलाती आ रही है, जो गुज़श्ता कुछ बरसों से इस पर आने वाले अखराजात और बच्चों की तादाद में कमी की वजह से इसे बंद करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब अलेक्जेंड्रिया शहर में वाक़े इस जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसी सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहती हैं कि अखराजात में कटौती के लिए वो इस सेंटर को बंद करने के हक में नहीं हैं, बल्कि उनके ख्याल में ऐसे मसाइल के शिकार बच्चों के रवैयों को बेहतर करने के लिए इस मुआशरे और मजमूई निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब बात करते हैं लबनान की, जहां 2 हफ्ते कबल होने वाले धमाके के बाद बहाली का काम अब भी जारी है। बैरूत में होने वाले इस धमाके में कम से कम 178 अफराद हलाक और कई 100 जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 400 ऐसे भी हैं कम से कम जिनकी आंखें बुरी तरह मुतासिर हुई शीशों के टुकड़े लगने की वजह से। इनमें से कुछ तो हमेशा के लिए नाबीना हो गए हैं। बिनाई मुतासर होने वाले एक शख्स का कहना है कि उसे अब एक नई हकीकत देखने के लिए खुद को तैयार करना होगा। सफेद गर्दो गुबार, शदीद धमाका और इसके बाद चारों तरफ स्याह धुएं के बादल। 4 अगस्त को बैरूत की बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में होने वाले इस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसकी वजह से कांच के छोटे बड़े और इंतहाई बारीक टुकड़े पूरे शहर में कम से कम 5 मील दूर तक फैल गए, जिन्हें 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी सड़कों से साफ किया जा रहा है। 34 साला वेब डेवलपर मरून दागर 3 बार अस्पताल का चक्कर लगा चुके हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है कि उनकी एक आंख की बीनाई मुस्तकिल तौर पर मुतासिर हो चुकी है। मुझे ख्वाब आने लगे हैं कि मैं देख सकता हूँ, और जब मैं सोकर उठता हूँ तो बहुत बुरे ख्याल आते हैं। जिस्मानी तौर पर तो मैं आधा अंधा हो चुका हूँ और अपनी आंख से बहुत तंग आया हूँ। सुबह के वक्त इसमें कुछ तकलीफ भी होती है। एक डेवलपर होने के नाते अब मुझे नहीं पता मेरे करियर और मुस्तकबिल का क्या होगा। बैरूत के अंदर और इर्द गिर्द कायम अस्पतालों से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में 6,500 से ज्यादा जख्मी होने वाले अफराद में कम से कम 400 लोगों को बीनाई और आंखों में तकलीफ पहुंची है। इनमें से 50 से ज्यादा लोगों को सर्जरी की जरूरत है और कम से कम 15 अफराद मुस्तकिल तौर पर अपनी एक आंख खो चुके हैं। समा घर के अंदर खिड़की से जरा दूर खड़ी थी जब धमाका हुआ। उसकी वालदा ने उसे बचाने की कोशिश की और उसे अपने बाजुओं में लपेट लिया, लेकिन चंद मिनटों के बाद हमें एहसास हुआ कि समा की आंख जख्मी हो चुकी थी और उसमें से मुसलसल खून निकल रहा था। 6 साला समा ने धमाके से चंद रोज पहले ही अपनी सालगिरह मनाई थी और अब डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें आंख के इलाज के लिए किसी दूसरे मुल्क में सर्जरी की जरूरत है, लेकिन समा के 43 साला वालिद की माली हालत इसकी इजाजत नहीं देती। मैं चाहता हूं कि लोगों पर जो भी उफ्ताद पड़ी वो सब मुझ पर आ जाती और शायद इस तरह समा बच सकती थी। 4 अगस्त को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले इस जोरदार धमाके में हुक्काम के मुताबिक 177 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि हजारों शहरियों को धमाके के नतीजे में हर तरफ फैलने वाले शीशे के टुकड़ों ने दायमी जख्म दिए हैं, जिन्हें भरने में कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। नुकबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अदाकारा नादिया जमील के नाम के साथ यूं तो बहुत से किरदार जुड़े हैं जो उन्होंने टेलीविजन और स्टेज पे अदा किए, लेकिन हकीकी जिंदगी में उनके नाम के साथ जुड़ा है लफ्ज सर्वाइवर। चाइल्ड अब्यूज सर्वाइवर, कैंसर सर्वाइवर। कैंसर से लड़ते लड़ते थक कर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन इसे छुपाया नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के साथ शेयर भी किया। उनके इसी सफर के बारे में मैंने उनसे बात की, जिसका एक हिस्सा इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, और आइए उन्हीं से जानते हैं कि अपने कमजोर लम्हात को छुपाने के बजाय उन्हें दुनिया के सामने पेश करने का फैसला उन्होंने कैसे किया। मैं वो खास बहादुर नहीं हूँ, मैं ये वही कर रही थी जो मैं अपने लिए बेहतर समझ रही थी और जो मैं डर और खौफ में अमूमन करती हूँ कि मैं हाथ निकाल के सॉर्ट ऑफ रीच आउट कर रही थी। इससे मुझे ये भी लगा
کہ میں اکیلی نہیں ہوں. یہ جو میری سوشل میڈیا فیملی ہے اور دوست ہیں, ان کے ساتھ ہی میں چلو یہ سفر طے کرتی ہوں, کہ ورنہ میں تھی اور اللہ میاں تھے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا بتائیں کہ کینسر کا ڈائگنوسس کب ہوا, اور جب ہوا تو اس وقت کیسا محسوس ہوا؟ 30 مارچ کو مجھے ایکچولی میں سیلف ایگزامینیشنز کی بہت قائل ہوں. میں باقاعدگی سے ہر 6 مہینے میں اپنا سیلف ایگزامینیشن کرتی تھی. 3 مہینے پہلے میرا میموگرام آیا تھا جو کہ بالکل کلیئر آیا تھا. اس کے بعد میں نے سیلف ایگزامینیشن کی تو مجھے اپنی گلٹی محسوس ہوئی, مٹر جتنی بڑی اور بہت سخت. الٹرا ساؤنڈ میں گلٹی واضح طور پہ نظر آئی. اسی وقت انہوں نے بایوپسی کی اور ایک تیسرا میموگرام کیا جس میں وہ گلٹی نظر آئی. میری دوست میرے ساتھ تھی, ان تمام مرحلوں میں میری دوست میرے ساتھ تھی. 4 اپریل کو میری سرجری ہوئی, وہ بھی میری دوست میرے ساتھ تھی. اپریل کے اینڈ میں آخر میں وہ گئی لیور ٹیسٹ کے دن, اور میں کریش کر گئی. تو آپ نے اپنی جان لینے کی کوشش کی, جس کے بارے میں پھر آپ نے بعد میں انسٹاگرام پہ بتایا بھی لوگوں کو. مجھے لگا, اور مجھے لوگ جس وقت میں گولیاں کھا رہی تھی نا, میں ایک ہی چیز محسوس کر رہی تھی, تھکن. میں وہ انسان تھی جو کبھی بھی اپنی جان لے ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ میری اولاد میرے سامنے آ جاتی تھی. لیکن وہ ایک مرحلہ تھا جس میں میری اولاد بھی نہیں مجھے روک سکی, اور مجھے بس تھا کہ بس میں آرام کر لوں, میں تھک جاؤں, میں کہیں چھپ, بس یہ رک جائے سب. لیکن اس وقت بھی گولیاں کھاتے ہوئے بھی جب میرا بیٹا آیا اور کمرے میں, اس نے کہا کیا کر رہی ہیں, کیونکہ میں بہت رو رہی تھی, پٹ رہی ہوں, رو رہی ہوں, گولیاں مانگ رہی ہوں. وہ مجھے گولیاں دے رہا ہے, 1 دی, 2 دی, 3 دی. پھر جب مجھے خود گولی کہیں ملی تو اس میں جب میں نے اٹھائی اگلی صبح لینے کے لیے, تو اس نے کہا مت, آپ نے نہیں لینی. تو میں نے کہا میں خود, آپ مجھے 3 گولیاں دے رہے تھے. کہتے ہیں ماں, رو رہا, ماں میں آپ کو وٹامن ڈی کی گولیاں دے رہا تھا, ماں میں آپ کو وٹامن ڈی کی گولیاں دے رہا تھا, آپ کو گولیوں کی ضرورت نہیں ہے. میں چیخ کے روئی, اور اس بچے نے مجھے سنبھالا ہے. مینٹل ہیلتھ کرائسس ٹیم NHS کی جو ہے, کاش کے پاکستان میں ایسی کوئی چیز ہو. انہوں نے میرا ایسا خیال رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرشتے بھیجے میرے پاس. اب جب نادیہ جمیل آئینہ دیکھتی ہے تو نادیہ جمیل کو کون نظر آتا ہے, کیا نظر آتا ہے؟ پتا ہے, جس دن میرے بال کٹے تھے میں بڑا روئی ہوں. اپنے بال اپنی گنج ہونے سے 1 رات پہلے بہت روئی میں, کیونکہ میرے بال مجھے احساس نہیں تھا میں اپنے بالوں کے پیچھے کتنا چھپتی ہوں. جب میں نے اپنا چہرہ دیکھا نا, گنجا چہرہ, پہلی بار میں نے یوں کر کے غور سے دیکھا, پہلی بار مجھے لگا مجھے اپنا چہرہ نظر آیا ہے, اور میری ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو گئی, کیونکہ مجھے ایک بہت مضبوط عورت نظر آئی, اور مجھے فخر محسوس ہوا اس پہ. اور یہ باتیں میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ مجھے یہ بہت خود غرضی لگتی تھی کہ میں اپنے لیے کہوں کہ مجھے شیشے میں ایک بہت مضبوط اور اچھی عورت نظر آ رہی ہے, جس سے مجھے فخر محسوس ہے. لیکن مجھے جب میں شیشے میں دیکھتی ہوں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. جب میں کاجل لگاتی ہوں تو مجھے اب اپنی آنکھیں اچھی لگتی ہیں. نادیہ جمیل کے ساتھ میری مکمل گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور اس کے علاوہ facebook.com/VOA Urdu کے پیج پہ. یہاں پہ آج کا ویو 360 ہوتا ہے ختم. سارا زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.